Hello students, good morning to all. I hope you are all fine and your study is going well. So students, you are learning the geography, okay, chapter 2, agriculture. Okay, in this is a video number 7 and this is the last video of this chapter. Okay, in the previous video we have discussed about the contribution of agriculture in the national economy or different sectors. We have studied in the table also that we also studied that to lack of the subsidy that the farmers cannot compete to the international competition in agriculture. Okay, now see that very interesting topic there is mentioned here on our blackboard. Impact of globalization on agriculture. Yes, very interesting, very important, very favorite topic of this chapter. We should understand, every student must know about the globalization impact in our agriculture. जैसा कि स्टूडेंट जो WTO का जो एग्रीमेंट हुआ है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो WTO का एग्रीमेंट में, उस एग्रीमेंट को जो हम पढ़ेंगे तो उसमें एक एग्रीमेंट ये भी है, एग्रीमेंट ऑन द एग्रीकल्चर. एग्रीमेंट ऑन द एग्रीकल्चर, दिस इज ए वेरी important agreement that we should know about, that what is the agreement, because people do the work according to the rules, according to the regulations. Nobody can supreme from the law, everyone must follow the law. That is why people work according to the agreement. Understand, every faculties they have rules and regulations in such way that in the WTO there is agreement on the agriculture. In the agriculture they have many rules and regulations that Indian farmer will have to follow that one. Okay, so please go to the Google, you will search it that what is the agreement of WTO on agriculture. You will find all details. So let's study that what is the impact of globalization on agriculture. एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है किस पर, एग्रीकल्चर पर. ये वेरी इंटरेस्टिंग है. चलिए हम लोग शुरू करते हैं. अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990, देख रहे हैं ना, माने 1990 के बाद जो ड्रामेटिकल चेंज आया इन आवर एग्रीकल्चर, इट वाज द वेरी डिफरेंट चेंजेस. दैट देखिए 1990 के बाद जो हमारे भारत में जो ग्लोबलाइजेशन आया, वह नॉट ओनली द एग्रीकल्चर बट ऑल्सो different departments are facing the more problem. You can say in the education, you can say the culture, you can say the civilizations, so on. If you will go through systematically line by line, then you will find the total concept of globalization in our world. Globalization is also improving our country, no doubt, but if you carefully concern that is it really the globalization is improving our country or not, then you will find the answer, then you will concern, otherwise you will not find the answer. So let's see that here, that impact of globalization on our agriculture. This is very important because as we know that students, that agriculture is the backbone of our country, no doubt. You can feel it that. But if globalization impact on our agriculture, then what will happen? That's, you know that
In the previous video that we studied that most of the farmers are withdrawing to investing in their agriculture to lack of subsidy. So let's study here 1990 में क्या हुआ था कि ग्लोबलाइजेशन ने एक नया चेंजेस लेकर आया था. The farmers in India have been exposed to new changes. माने हमारे भारत में जो इंडियन फार्मर थे उनके अंदर एक नया चेंजेस हमें देखने को मिलता है. क्या देखने को मिलता है? वो चेंजेस किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है. लेट्स सी. I hope you have understood this point. Next, despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute and spices, our agricultural products are not able to compete with the developed countries. क्या है? जैसा कि आप देख रहे हो, डेवलप्ड कंट्रीज, एक है डेवलप्ड कंट्रीज, एक है डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलप्ड कंट्री मीन्स व्हाट? डेवलप्ड कंट्री उसे बोलते हैं जिस कंट्री में क्या है, एजुकेशन का सिस्टम बढ़िया है, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया है, वहाँ का कम्युनिकेशन बढ़िया है, वहाँ का एग्रीकल्चर बढ़िया है, सो ऑन etc. बट यदि हम एक टॉपिक की बात करें, ये सब इंटायर की हम बात करें तो है डेवलप. ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर टोटली कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुके हैं. बट यदि हम डेवलपिंग कंट्री की बात, डेवलप कंट्री किसी की बात करें तो डेवलप कंट्री किसी वजह से अमेरिका हो गया, बात समझ में आ रहा है, फ्रांस हो गए, समझ में आ रहा है, और भी सारे कंट्री हैं. तो मैं 2 कंट्री के यहाँ नाम लिया. सो ये क्या है? डेवलप कंट्री है. बट यदि हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें, वह कंट्री जहां पर क्या है कि डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे इन एजुकेशन है ना, इन एग्रीकल्चर, इन ट्रांसपोर्टेशन, इन कम्युनिकेशन etc. और भी सारी चीजें डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो उसे हम डेवलप्ड कंट्री नहीं बोल सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? डेवलपिंग कंट्री. अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम झेलने को मिल रही है कि 1990 में जब ग्लोबलाइजेशन आया तो समस्या क्या हुई मोस्टली इंडियन फार्मर्स के लिए कि जो किसान क्या कर रहे थे, चावल, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट एंड स्पाइसेस ये ग्रो कर रहे थे, they are not able to compete with the developed countries. वे डेवलप कंट्रीज से compete नहीं कर पा रहे थे, नो डाउट. यदि डेवलप कंट्री की हम बात करें, चाइना हो गए, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, और भी कंट्रीज हैं, वहाँ के जो फार्मर हैं, वहाँ के फार्मर इंडियन फार्मर को compete कर दे रहे हैं, उन्हें पीछे छोड़ दे रहे हैं. जबकि वहाँ भी क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर हो रहे हैं, और हमारे यहाँ पे मैंने इंडिया में भी एग्रीकल्चर हो रहा है. तो हम लोग जो यहाँ पे उत्पादन करते हैं वे भी लोग उत्पादन करते हैं, लेकिन वर्ल्ड के मार्केट में क्या हो रहा है स्टूडेंट? हम फेल हो जा रहे हैं. यहाँ देखो ना, साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द डेवलप्ड कंट्रीज. माने जो प्रोडक्ट हम उत्पादन कर रहे हैं स्टूडेंट, वे वर्ल्ड के मार्केट में डेवलप्ड कंट्री से compete नहीं कर पा रहे हैं. You can think about why. See that? Because highly subsidized agriculture in those countries. दोस्त किसके लिए हुआ है यहाँ पर? डेवलप्ड कंट्री के लिए. दोस्त किसके लिए हुआ है? डेवलप्ड कंट्रीज के लिए. माने ये कि दैट जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके यहाँ उनके फार्मर्स के ऊपर गवर्नमेंट क्या कर रही है? हाईली सब्सिडी दे रही है. देख रहे हैं ना, हाईली सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर.
डेवलप कंट्री में जो वहां की गवर्नमेंट है क्या कर रही है, उन्हें हाईली सब्सिडी दे रही है, छूट दे रही है खेती करने के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, और भी जो फार्मर को चाहिए छूट मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं एग्जाम्पल रूप में बताऊंगा आपको, जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ मैं आपसे शेयर करूं तो मान लीजिए लोन है, ठीक है ना, लोन है, यदि आप बाहर से लोन लोगे, मैं एग्जाम्पल यहाँ दे रहा हूं आपको, तो 100 रुपीज आप लोगे, ठीक है, 100 रुपीज आप लोगे तो इसका इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट कितना हुआ 5 रुपीज। बात समझ में आ रहा है? माने यदि आप 100 रुपया लिए बाहर से तो कितना मिल रहा है आपको, 5 रुपीज इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन यदि गवर्नमेंट यदि सब्सिडी दे दे, बोले कि ठीक है आपकी फसल खराब है तो क्या कर सकते हैं आपको 100 रुपया पर मैं क्या दे रहा हूँ, 2 रुपया केवल इंटरेस्ट दे रहा हूँ, 2 रुपया में इंटरेस्ट लूंगा, 100 रुपया में आपको दूंगा, 2 रुपया में इंटरेस्ट लूंगा। तो आप सोचिए यही सब्सिडी है ना, यही छूट है कि नहीं? तो ये मान लीजिए हमारा भारत है, हमारे भारत में क्या है, ये सब्सिडी नहीं है। 100 रुपीज में आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 5 रुपीज, जबकि अनदर कंट्री में 100 रुपीज पे क्या होगा, केवल 2 रुपया पे इंटरेस्ट दे सकते हैं, सब्सिडी है, गवर्नमेंट सब्सिडी दी है एग्रीकल्चर फार्मर्स को। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से आप कल्पना कीजिए कि यदि ये आगे बढ़ेंगे कि ये आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भाई जब ये अपने फार्मिंग करेंगे तो इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा। जब वर्ल्ड मार्केट में बेचेंगे तो इनका प्राइस क्या, इनका प्राइस सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि इनका प्राइस ज्यादा हो, क्योंकि इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ज्यादा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो अपने मिनिमम प्राइस पे क्या करेंगे, इसको बेचेंगे तो इनको एडवांटेज मिलेगा। That is why our Indian farmers are not able to competing to the developed countries. I hope you have understand this topic, impact of globalization on agriculture. If you are more interested about this topic, then you will go to the WTO agreement on the agriculture. You will find whole details that what is that एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से सभी चीजें होती हैं स्टूडेंट्स। जो एग्रीमेंट हो चुके हैं एग्रीकल्चर पर, जो एग्रीमेंट स्कूल पे हो चुके हैं, जो एग्रीमेंट कम्युनिकेशंस पे हो चुके हैं, जो एग्रीमेंट्स अदर सेक्टर्स पे हो चुके हैं, ऑल दे विल हैव टू फॉलो ऑल द पॉलिसीज, सो नोबडी कैन गो फ्रॉम द एग्रीमेंट। सो आई होप you have understand this topic very well, and you will watch this video once and 2 times, then your all conceptions will clear about the globalization on agriculture. Okay, best of luck, thank you.